नमस्कार, मैं राजीव आई न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। ये नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। Shopian. While briefing the media, Deputy Commissioner Shopian Sachin Kumar Vaisya today at Mini Secretariat, Arhama Shopian, made it clear that the district administration is well equipped to tackle the second wave of COVID-19 pandemic and said that the district administration is on forefront to break the chain of coronavirus infection in the district, and added that the district administration is also keeping close vigil on the situation arising due to the COVID-19 spike and is also playing major role for providing quality and accessible healthcare services to the hospitalized as well as home isolated patients. The home isolated patients were provided medical kits, and a team of doctors along with a physician is always ready to check them on daily basis, and also better treatment is being provided to them to make the COVID under control and to facilitate the patients with better health care. A capacity of 5 beds along with Rekhi requirements in each panchayat is being established. DC maintained the positive rate of cases in the district is declining and recovering rate increasing day by day in the district. After imposing lockdown and COVID curfew in the district, continuous decline was witnessed in number of positive cases, and added that 99% vaccination process was completed till date, and said that all the magistrates have been directed for house-to-house survey so that any left out may be vaccinated to get rid of the virus. More and more testing programs are being conducted so that no one is left out without testing. DC said that all the requisite precautionary measures are being taken to defeat the second wave of COVID-19 as the first wave was defeated, which yielded good results. The People's Cooperation is also imperative to beat the coronavirus by adhering COVID-19. Appropriate behavior and vaccination process in the district has been ramped up, and the people are being vaccinated to break the chain of virus transmission. DC observed that the district administration is aiming to make the healthcare system one of the best in the district, and called for strenuous efforts from all the stakeholders to improve the health services delivery and to strengthen the patient care system. Report by Siriada, District Shopian. नमस्कार, आदाब सभी शोपियान के लोगों को। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि हमारी जो फर्टिलिटी एक्चुअली रेट है वो 0.5% पर है। मतलब कि हमारे टोटल जो अभी तक 2200 या 2300 के आसपास केसेस है, उनमें केवल 10 फर्टिलिटीज हुई हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे पॉजिटिव्स तो आए हैं काफी, बट फर्टिलिटीज का इसका रीजन जो जाता है लोगों को एसओपीज का पालन किया लोगों ने। दूसरा चीज क्या है कि वैक्सीनेशन का अच्छा जो पेनिट्रेशन रहा है, लगभग 99% लोगों ने वैक्सीन लिया है फर्स्ट डोज। सेकेंड डोज उनका जो 3 महीने के बाद में यानी 12 हफ्ते के बाद जो टाइम आएगा उसमें सेकेंड डोज लोगों को मिलेगा। उसके बाद क्या है कि लोग जो होम आइसोलेशन में है पूर्ण तरीके से उन्हें वो सारे अपने पेस पर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वर्किंग सीजन कम है तो इसी पेस से चलाना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या है कि जितनी भी स्कीम्स हैं जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपको मदद मिलती है, चाहे वो स्कॉलरशिप की स्कीम हो या फिर पेंशन की स्कीम हो या फिर लेबर्स जो हैं उनको कुछ मदद देना हो, तो वो अपने तय सीमा में अपने स्पीड से चलाई जाएंगी और जल्द ही जल्द, जैसे डायरेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से, हम उनको देंगे ही। तो लोगों से कहीं ना कहीं एक अपील करना चाहूंगा इसके माध्यम से कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आप एहतियात बरतते हैं, काफी आसान है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आप जिस हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उससे काफी अच्छा पॉजिटिविटी का माहौल है। हम 40 बेड, मैंने पिछली बार भी आपको बताया, टुकरू में ऐड करने जा रहे हैं। काम शुरू भी हो गया है, कल से शुरू हो रहा है, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर केलर के लिए भी हम लगे हुए हैं कि मैनिफोल्ड के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई हो, तो हम पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। इवन हमें डायरेक्शंस हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो थर्ड वेव के लिए भी हमें तैयार रहना है। लेकिन हम कितनी भी तैयारी करें अपने लेवल पर, ये हम तभी जीत सकते हैं जब लोगों का सपोर्ट रहेगा। और जिस हिसाब से आप सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये आप कंटिन्यू करें
घर से तभी निकलें जब आपको जरूरत है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तभी घर से निकलें, अदरवाइज अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ अच्छे से रहें, उनको कोऑपरेट करें, पूरा कोऑपरेशन दें, तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। अदरवाइज ये कोई कानून एवं व्यवस्था की प्रॉब्लम नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है कि आपको रोका जाए तभी ये कोरोना रुक जाएगा। कोरोना एक बीमारी है, एक आपदा के फॉर्म में महामारी है, तो ये तभी रुक सकता है जब हम अपने आप को बचाएंगे। अगर आप एक्सपोज होते हैं तो ये कोई किसी के बिना उपचार के तो इसको रोक पाना फिर संभव नहीं हो पाएगा। अगर एक बार आप कांटेक्ट में आ जाते हैं तो अच्छा यही रहेगा कि आप लोग कांटेक्ट में ही ना आए, सारी सावधानियां बरतें। फिर से हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिला प्रशासन आपसे रिक्वेस्ट करता है, मास्क जरूर पहने, हाथ धुलते रहें समय समय पर, और पूरा एसओपीज जो भी हैं सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अब तक के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। आई न्यूज हर खबर पर पहली नजर।